Okay, good afternoon. Assalamu alaikum, everyone, and welcome to lecture 27. And today is our last official class. And after that, we will have, if you guys need that, then we will have a review session or a tutorial in the next week, but after today we will be done with the syllabus and content of this course. Okay, so we start with the C13, and last time we discussed three different techniques of C13. Uh, Number one, and the first one is the proton coupled C13 spectrum. And then we talked about proton decoupled C13 spectrum, which is also called the broadband spectrum. And the third one was the off resonance spectrum. And there are some pros and cons in each technique. By far, the best technique is the proton decoupled spectrum, which have singlet for every carbon in your sample, every non-equivalent carbon in your sample. But the problem is the loss of information on the identity of carbon. We cannot tell by looking at the signal whether the peak is due to CH3, CH2, CH, or quaternary carbon. For that, we will discuss a new technique which is called DEPT. DEPT is actually the abbreviation of distortionless enhancement by polarization transfer. So it's a mouthful name, but people normally call it DEPT. And that actually give you all information which were lost in broadband C13 spectrum or the proton decoupled spectrum. It is better than off resonance decoupling. Why it is better? Because it has a better signal to noise ratio. You mostly need very small amount of sample, and plus the signal is enhanced by this mechanism which is called polarization transfer. This is actually a complex mechanism which will not be covered in today's lecture. That is little bit advanced, but it is sufficient to tell you that there are other mechanisms by which you can enhance the signal by polarization transfer. Okay, so let's start. So DEPT has different versions or different technique or different experiments in which we identify the type of carbon in your sample. So first one is called DEPT 45. If you have a DEPT 45 spectrum, you can actually determine all carbon which contain hydrogen. So that means other than the quaternary carbon, all other carbons will be present in this spectrum in the form of singlet. And when you compare the depth 45 with the conventional broadband spectrum, then you can identify these quaternary carbon by looking at any peak which is missing in depth 45. Okay, so depth 45 में जो peak miss होगी वो आपकी quaternary carbon होगी, बाकी सारी carbon उसके अंदर मौजूद होंगी. Then we have a depth 90 spectrum, and that spectrum contain only those peaks which are due to carbon hydrogen bond, CH bond. ओके, सो आपके मॉलिक्यूल में जहां जहां जितने जितने सी एच हैं उतनी पीक इस डेप्थ 90 में अपीयर होंगी. एंड देन लास्टली वी हैव डेप्थ 135 which contain actually all hydrogen containing carbon, but they have a positive and negative signal.
So we will have a positive signal for CH and CH3, which have the odd number of hydrogen. But in negative signal for CH2, which have the even number of protons. तो डेप्थ 45 को जब आप कंपेयर करेंगे डेप्थ 90 से, तो आप सी एच और सी एच थ्री में डिफरेंस कर लेंगे, और सी एच टू की पीक वैसे ही नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब ये है कि इट विल शो ए पीक in the opposite way. For example, if this is your spectrum of 145, so any positive peak will be having a signal in upward direction, and negative peak will have the signal in the डाउनवर्ड डायरेक्शन। सॉरी, आज मेरे पास वो टैबलेट नहीं है, इसलिए मुझे ड्राइंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो दीज आर CH3 और CH which are appearing as a positive peak, और जो नीचे वाली पीक है नेगेटिव है, that will be CH2। और अगर आप डेप्थ 90 के साथ और डेप्थ 45 के साथ कंपेयर करेंगे, यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई ऑल पीक्स इन योर स्पेक्ट्रम। तो इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। अब इस एग्जांपल में देखें कि बॉटम में हमारे पास स्पेक्ट्रम है विच इज C13 ब्रॉड बैंड डीकपल्ड। तो इससे प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रम, और all peaks appear in the form of singlet. So we have 6 peaks, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And don't worry about the numbering order, because that has been, placed due to the appearance of these carbon in the structure. So we will not worry about that. So all these peaks are present in C13 proton decoupled. And then we have another spectrum which is stacked in the upper direction. This is depth 45. So depth 45 में अगर आप देखें, so we have all peaks which contain hydrogen, but only the missing peak is those which do not have any hydrogen. So अगर आप peak 6 देखें, तो peak 6 does not appear in depth 45. So that clearly tell us that any missing peak in C35 is the quaternary carbon. ये हमारे पास कोई कार्बोनिल हो सकता है, या ऐसी कार्बन है which is tetra substituted, it does not have any hydrogen on it. तो अब आप जो है वो बाकी हाइड्रोजन जो कार्बन है उसकी आइडेंटिटी करेंगे by using depth 90 and depth 135. So depth 90 it show only CH. So इसका मतलब यह है कि whatever peak you see here, that is your CH. So अगर आप इसको देखें तो ये कार्बन नंबर 2 जो इसके बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो that is our CH हाइड्रोजन। तो that is CH। और बाकी अगर आप देखें तो डेप्थ 145 में जो नेगेटिव पीक हैं, जैसे ये पीक नंबर 4 है, दैट इज डाउनवर्ड, सो दैट मस्ट बी CH2। and this peak here, peak number 3, that is also downward, so that will be CH2। और उसके बाद हमारे पास जो पीक ऊपर रह जाती हैं, जो बाकी रह गई हैं, दे आर, आपने C को कंफर्म कर लिया, आपने CH2 को कर लिया, CH को कर लिया, वट एवर इज लेफ्ट इज CH3। तो हमारे पास ये स्पेक्ट्रम है जिसमें आपके पास केमिकली नॉन इक्विवेलेंट CH3 हैं, और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट CH2 हैं, और CH है, और उसके पास quaternary carbon. So you can see that by taking depth spectrum, you can actually get those information which were lost due to combining all multiplet into a single peak. Question यहाँ पे, no question?
All right, so let's move on. Uh, Next topic is the solvent which we use in NMR. In proton spectrum, mostly these hydrogens are replaced with deuterium, and we normally don't see the response of deuterated peak in the proton spectrum. Only the residual peak of hydrogen are appearing uh, in the proton spectrum. But C13, we have a coupling constant, coupling between C13 and deuterium. Just recall that C13 is NMR active and deuterium is also NMR active, and they can split the signal of each other, and so we will see the multiplet. So आपने अगर आप प्रीवियस लेक्चर में देखें तो जो CDCl3 जो ड्यूट्रेटेड क्लोरोफॉर्म है उसका सिग्नल हमारे पास अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिपलेट। एक आपको जो है ना एक ट्रिपलेट की फॉर्म में पीक मिलती है 77 ppm के अराउंड। तो हमने ये जानना है कि व्हाई देयर इज ओनली वन कार्बन, व्हाई वी आर सीइंग द थ्री पीक्स हियर, और इन केस ऑफ DMSO यू सी 5 पीक्स। तो आपने उसका ओरिजिन देखना है कि व्हाई वी आर सीइंग दोज मल्टीप्लेक्स। एंड द फर्स्ट थिंग यू शुड नो दैट deuterium attached to C13 will split the signal of C13 into multiplex। और ड्यूटेरियम की केस में आप देखें कि इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज इक्वल टू 1, स्पिन क्वांटम नंबर I दैट इज 1। और अगर आप फार्मूला यूज करें 2n+1, तो 2n1+1 हमें बताता है कि हाउ मैनी स्पिन स्टेट्स आर पॉसिबल फॉर ड्यूटेरियम। तो आप इस टॉपिक को प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ चुके हैं। So with I is equal to 1 spin state of 2i+1 we will have a 3 spin state। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूल है CDCl3 में जो ड्यूटेरियम है that can occupy any of these 3 spin state। अगर आप इसकी एनर्जी डायग्राम अगर आप रिकॉल करें तो जो स्पिन स्टेट 3 होती हैं तो उसमें हमारे पास 3 स्पिन स्टेट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आपका जो न्यूक्लियस है दैट कैन बी अलाइंड with the applied magnetic field, that will be the lowest energy, and then it will be in the middle, and then it will be opposing the applied magnetic field। Okay, so 3 spin state में CDCl3 इसमें से किसी spin state में हो सकता है। और ये आपको पता है कि at room temperature these spin state are almost equally occupied। तो आपके कुछ मॉलिक्यूल इस स्पिन स्टेट में होंगे, कुछ मॉलिक्यूल इस स्पिन स्टेट में होंगे, कुछ इस स्पिन स्टेट में होंगे। तो उसका मतलब यह है कि आपका जो सिग्नल है दैट विल बी इन दिस केस दैट विल बी डी शील्डेड, इसकी फॉर्म में इट विल बी शील्डेड। तो ये सिग्नल आपका इन मॉलिक्यूल की वजह से आ रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं, और मिडल वाला सिग्नल उन पे आ रहा है जो इररेलेवेंट हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, और जो थर्ड वाला सिग्नल है दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स whose nuclei are aligned with the applied magnetic field। ओके, तो अब आपको आइडिया हो गया why we see the triplet 3 equal height peaks in the CDCl3 solvent। और इक्वल ये इसलिए हैं कि बिकॉज दे आर इक्वली पॉपुलेटेड, और 3 इसलिए हैं कि बिकॉज दे हैव 3 स्पिन स्टेट। व्हाई दे हैव 3 स्पिन स्टेट? बिकॉज द I वैल्यू इज 1। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजों को कोरिलेट करें। क्वेश्चन, ओके,
चलें इसके जो सेपरेशन है दैट इज 45 हर्ट्ज, जो इसका कपलिंग कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, और स्पिन स्टेट को आप लेबल करते हैं -1, 0 और 1। आप जस्ट रिकॉल कि आपने जो भी आई वैल्यू होती है ना उसमें से जो सबसे लोएस्ट है दैट विल बी विद द नेगेटिव वैल्यू, द पॉजिटिव वैल्यू सॉरी, the lowest one will be +1, and then you subtract -1 uh, from this value, that will give you 0, and then you subtract -1, then that will give -1 value. तो आपने प्लस आई से नेगेटिव आई वैल्यू जो स्पेन क्वांटम नंबर है उसमें इसको लेबल करना होता है। तो इसकी 3 स्पिन स्टेट हैं विच आर इक्वली पॉपुलेटेड। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हमारे पास जो एक सॉल्वेंट है जिसमें मोर देन डी आइसोटोप हैं। ओके, सो CdCl3 में हमारे पास एक ही ड्यूटेरियम था, तो वी कैन सिंपली से दैट इट हैज ए 3 वैल्यू। But if deuteriums are more than one, then n+1 formula will be changed to 2n+1. N क्या है? It is the number of deuterium atom in the solvent. So for example, DMSO में हमारे पास 3 ड्यूटेरियम है। DMSO का जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ ड्रा कर दूँ। S के साथ डबल बॉन्ड एंड देन ऑक्सीजन, एंड देन वी हैव ए कार्बन with 3 hydrogen, but these hydrogens are replaced with the deuterium, and then on other side we have a carbon which is attached with 3 deuterium, and अगर ये कार्बन C13 है, यहाँ पे भी मैं इसको C13 कर दूँ, then C13 and deuterium will split each other. तो हमारे पास इसका जो सिग्नल आएगा that will appear as a triplet. Sorry, in case of one deuterium that will be triplet, but if we have more than one deuterium then we have to use formula 2nl plus 2ni plus 1. So I आपका स्पिन क्वांटम नंबर है और n क्या है? n is number of deuterium. तो हम जब इस फार्मूले में फिल करते हैं 3 is the deuterium atom and I is 1, and that give us 7. So that means we will see a heptet at the chemical shift of 39 for the C13 spectrum of deuterium. तो ये deuterium का जो सिग्नल है that will give the 7 peak, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, और इनके दरमियान भी केमिकल शिफ्ट जो डिफरेंस है वो कार्बन ड्यूटेरियम का जो कपलिंग कांस्टेंट है अराउंड 45, उसके दरमियान इसकी पीक के दरमियान सेपरेशन होगी। ओके, अब रिलेटिव इंटेंसिटी जो है, मसलन इस पीक के हिसाब से जो रिलेटिव इंटेंसिटी है या इस पीक की इसके साथ इंटेंसिटी है, इट डज नॉट फॉलो द पास्कल ट्रायंगल। ओके, तो ये आपको यहाँ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस चार्ट को यूज़ करके बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द रिलेटिव हाइट ऑफ पीक when we have different number of deuterium in your solvent. So for example, if there are 2 deuterium per carbon, then we will see a pentet 5 peak, और उनकी जो relative intensity है 1 2 3 2 1 होगी। और फॉर 1 ड्यूटेरियम जो क्लोरोफॉर्म में हमने देखा था जिसमें स्प्लिट है, मल्टीप्लिसिटी 3, and they are 1 1 1 relative intensity. Okay, in case of 3 deuterium we have 1 3 6 7 6 3 1. तो आप देखते हैं कि इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है, तो I will not ask you to memorize these values. Question? No question? Then we move on to the next topic. Okay, today we will start a very important
topic, and that is the relaxation processes. ये जब आप NMR एडवांस लेवल पे स्टडी करते हैं, MRI इमेजिंग जो होती है, तो उसके अंदर we use this parameter a lot. Relaxation time, relaxation processes. You will see there are two type of relaxation processes. Relaxation किसको कहते हैं कि सबसे पहले तो आपका जो न्यूक्लियस है that has spin state, एक लोअर स्पिन स्टेट है, एक हायर स्पिन स्टेट है. तो अगर कोई न्यूक्लियस लोअर स्पिन स्टेट पे है तो हम उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिस एनर्जी से ये लार्मर फ्रीक्वेंसी शो करता है. जो इतनी इसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है, जो सर्कुलर मूवमेंट होती है न्यूक्लियर टिप की, तो उस फ्रीक्वेंसी को जब हम सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो ये हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है. बट इट डज नॉट स्टे देयर फॉरएवर बिकॉज इट हैज टू मेंटेन द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, और ये फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट है आपके न्यूक्लियस ने वो पॉपुलेशन मेंटेन करनी होती है. तो जब आप एनर्जी के या सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियस जो लो एनर्जी पे हैं दे विल मूव टू दी हायर एनर्जी स्पिन स्टेट, बट उससे ये जो पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि लोअर स्पिन स्टेट पे आपकी पॉपुलेशन लेस हो जाएगी एंड हायर स्पिन स्टेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी. So naturally, some of the nuclei will release that energy and come back to the ground state. और ये जिस मैकेनिज्म से ये एनर्जी रिलीज करते हैं उनको हम रिलैक्सेशन प्रोसेस कहते हैं. तो ये दो तरह के होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर मॉडल. वेक्टर मॉडल से NMR जो है वो बहुत सारे लोग उससे बेटर अंडरस्टैंड करते हैं. आई हैव ट्राइड टू गिव यू द मैक्सिमम फ्लेवर ऑफ दिस मॉडल एंड आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन, बिकॉज ये मॉडल हम लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे हैं और इसके लिए आपको दोबारा फिर जो है ना वो चांस नहीं मिलेगा, इसलिए अभी आप जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लीजिएगा. ओके, सो लेट्स अज्यूम वी हैव ए अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B0 और हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ है जो कि एक स्पेस को इंडिकेट करता है. तो अब हमारे पास जो न्यूक्लियाई है वो दो स्पिन स्टेट में इसके अंदर मौजूद होंगे. हम सपोज कर लेते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट ए मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 एंड OH. ये एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है which have three different chemically different hydrogens and two different chemically different कार्बन्स. सो हमारे पास इसमें मल्टीपल पीस मिलेंगी एंड देन वी हैव सेवरल हाइड्रोजन्स एंड 2 कार्बन्स. अच्छा, हर कार्बन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें टू मेक द थिंग्स लिटिल बिट सिंप्लीफाइड, हाइड्रोजन के यहाँ 3 न्यूक्लियस हैं एंड दे विल बी रैंडमली ओरिएंटेड बाय एनी डायरेक्शन, अप और डाउन. ओके, इसी तरीके से यहाँ पे CH2 के 2 न्यूक्लियाई हैं दैट कैन बी रैंडमली ओरिएंटेड अप और डाउन, और फिर यहाँ पे हमारे पास OH है. ये विद इन ए सेम मॉलिक्यूल ये सिचुएशन है. नाउ वी हैव बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल और उनमें हर एक में ये टाइनी मैग्नेट मूव कर रहे हैं. ओके, तो अगर हम यूं करें कि जितने मैग्नेट एक साइड पे यानी जो पैरेलल हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, वो सारे एक ही जगह पे इकट्ठे कर लिए जाए एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो वो किस तरीके से आपको नजर आएंगे. दे विल बिहेव लाइक दैट कि इसमें सारे ये जो ग्रीन कलर के मैग्नेट हैं वी एक्चुअली अज्यूम दैट दे हैव कॉमन ओरिजिन, और वो उस ओरिजिन के रिस्पेक्टिव में लार्मर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट
फेज एंगल पे हैं, कोई फॉर एग्जांपल इस जगह पे है, कोई इस जगह पे है, कोई इस ओरिएंटेशन पे, कुछ इस ओरिएंटेशन पे, तो दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट दिस सर्कल। तो ये सारे वो न्यूक्लियाई हैं जो सेम मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर से भी हो सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ इसको क्लियर करता हूँ ताकि आपको नीड स्पेस। ओके, नाउ कुछ मॉलिक्यूल कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होंगे जो आपके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे होंगे, एंड अगेन दे विल बी ऑन डिफरेंट फेजेस। अब इसमें देखें कि जो न्यूक्लियाई एग्जैक्टली अपोजिट है, मसलन अगर आप इस ग्रीन बार को देखें और उसके पैरेलल कोई एक एंटी अलाइनमेंट में भी कोई वेक्टर मौजूद है, तो जब इन दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, तो रिजल्ट विल बी जीरो बिकॉज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड but the direction is exactly opposite to each other, so they will cancel each other. रिजल्ट क्या होगा कि कुछ मैग्नेटाइजेशन जो अपोज कर रही है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, दे विल कैंसल सम अलाइंड मैग्नेटाइजेशन। तो हमारे पास उसमें से ये जो आप एक चीज याद रखिएगा कि जो मैग्नेटाइजेशन पैरेलल अलाइंड हैं, दे विल बी इन एक्सेस, क्योंकि ये पॉपुलेशन एक्सेस हमें लाजमी चाहिए, इसके बगैर तो आप एनएमआर सिग्नल ही नहीं आता। तो आपके ये ग्रीन सिग्नल हमेशा एक्सेस में होंगे, एंड जो रेड सिग्नल है जो अपोज हैं, दे आर एट हायर एनर्जी, सो दे विल बी इन लो नंबर, लोअर पॉपुलेशन। तो आप जब इनमें कैंसलिंग कर देंगे तो आपके पास पॉपुलेशन एक्सेस आ जाएगी। सो दिस ग्रीन इज नाउ पॉपुलेशन एक्सेस, एंड यू हैव एक्चुअली फिल्टर्ड आउट all those magnetization which have cancelled, which are opposing the applied magnetic field। ओके, अच्छा, अब हर मैग्नेट को अगर आप इसको एक वेक्टर की फॉर्म में देखें तो आपको इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस पे है और एक कंपोनेंट जो जी एक्सिस के अलोंग है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो आपका ये ग्रीन वेक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि हर वेक्टर अगर आपने इंडिविजुअल कंपोनेंट वेक्टर में अगर स्प्लिट कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि जो एक्स वाई जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, इसके अंदर ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर विल बी कैंसल्ड आउट। फॉर एग्जांपल इस वेक्टर में अगर आप देखें तो इसका एक्स इस साइड पे होगा और इसका जो जी है दैट विल बी पॉइंटिंग द सेम डायरेक्शन। तो एक्स वाले जो दूसरे क्वाड्रेंट में है, दे विल कैंसल अगेन इन द सेम वे, लाइक यहाँ पे इन्होंने कैंसल कर दिया था, तो यहाँ पे ये वेक्टर भी आपस में एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। रिजल्ट क्या होगा? we will be left with only the net magnetization। ये जो सारे जो z डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ये पूरे सैंपल की अब मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे सैंपल के जो मैग्नेट टाइनी आपके न्यूक्लियाई जो z डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, दे विल ऐड टुगेदर, बट ऑल अदर कंपोनेंट विल कैंसल आउट। तो इसका मतलब यह है कि योर magnet is actually dealing with this green thick vector for the signal। अब आपने इसका नाम इसको बल्क मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी कहते हैं, एम। तो अब आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस बिग जो थिक एरो है उसको डील कर रहा है। अब आप इग्नोर कर दें ये जो इंडिविजुअल है, इनको आप भूल जाएं कि दे एक्चुअली एग्जिस्ट आर नॉट। ओनली ये जो ब्लू वाला है ये एरो एग्जिस्ट करता है क्योंकि बाकी सारे कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। अच्छा, अब आपने नेट मैग्नेटाइजेशन को लेके यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक पल्स आप देखते हैं। पल्स का मतलब यह है कि इट कंटेन मैनी फ्रीक्वेंसीज विच कवर ऑल लार्मर फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर न्यूक्लियस। ओके, जैसे अगर हाइड्रोजन है तो उसकी सारी जो भी लार्मर फ्रीक्वेंसी है वो इसको कवर करना चाहिए। अगर कार्बन है तो कार्बन की लार्मर फ्रीक्वेंसी इसमें कवर करें। तो अब आपने जब ये
पल्स लगाएंगे तो ये पल्स जो है इस मैग्नेटाइजेशन को इस एक्स एक्सिस पे टिल्ट करेगा, बिकॉज इसके अंदर जो मैग्नेटिक वेक्टर है दैट विल इंटरेक्ट विद दिस मैग्नेटिक वेक्टर, और इसको इसके अंदर एक टॉर्क पैदा होगा, इसके अंदर एक फोर्स पैदा होगी जो इसको एक्स डायरेक्शन पे टिल्ट करेगी, और उससे आपका ये वेक्टर जब आप ये पल्स अप्लाई किया है तो ये टिल्ट कर जाएगा बिकॉज ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी। आप जितना स्ट्रॉन्गर पल्स और जितने लॉन्गर टाइम के लिए करेंगे उतनी ही ये मैग्नेटाइजेशन टिल्ट करती रहेगी, और ये टिल्ट करके आपको इस डायरेक्शन पे आ जाएगी। अब इस टिल्टिंग से क्या होगा? इस टिल्टिंग से ये होगा कि आपका पूरा जो वेक्टर है वो सपोज करें कि एक्स एक्सिस पे अलाइन कर गया, आपने इसको कहते हैं 90 डिग्री पल्स। 90 डिग्री पल्स उसको कहते हैं जब आपने इतनी देर पल्स उसको प्रोवाइड किया है कि ये जो नेट मैग्नेटाइजेशन है दैट इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये सारे वेक्टर जो है वो रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि ये नेट मैग्नेटाइजेशन जो है दिस इज नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, लेकिन इसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं वो रोटेट कर रहे हैं एक्स वाई इस प्लेन में, लार्मर फ्रीक्वेंसी में। ओके, अब आपने जब इसको एक्स वाई पे टिल्ट किया तो यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन है यहाँ आपने रिसीविंग कॉइल रखी होती है। जो ही ये नेट मैग्नेटाइजेशन एक्स एक्सिस पे फॉल करती है तो ये कॉइल जो है एक्टिवेट हो जाती है, इसके अंदर सिग्नल जो है वो अपीयर होता है, क्योंकि अब चूंकि मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर रोटेट कर रही है इस तरीके से, ऐसे मूव कर रही है, तो जो ही इसके अंदर से ये सिग्नल गुजरता है तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड करता है, और इस रिकॉर्डिंग को आप नोट कर लेते हैं अपीयर एज ए, उसको हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब आपने जो इसको समझना है कि वेक्टर मॉडल पे ये जो इंडिविजुअल आपके वेक्टर हैं, आपने नेट मैग्नेटाइजेशन तो आपके एक्स एक्सिस पे आ गई, लेकिन इंडिविजुअल वेक्टर आपके सपोज करें कि इस तरीके से ओरिएंट कर रहे हैं, तो ये इनके जो मैग्नेटाइजेशन जो रिजल्टेंट वेक्टर है इनकी एडिशन के बाद वो एक्स एक्सिस पे कैसे आएगा? कोई बता सकता है कि एक्स एक्सिस पे कैसे आएगा अगर आप इस मॉडल ये जो इंडिविजुअल वेक्टर है? Anyone, especially from physics? Anyone from physics is sitting today? Alright, चले मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये पता है कि हर कंपोनेंट के जो हर वेक्टर है इसके हमने कहा था दो कंपोनेंट हैं, एक्स कंपोनेंट एंड जी कंपोनेंट। सो अगर आप वेक्टर्स को इस तरीके से मूव करें कि आपका जो z कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट दैट शुड कैंसल आउट, लेकिन जो x एक्सिस पे कंपोनेंट है दैट शुड नॉट कैंसल आउट। ये कैंसल आउट उस वक्त ही होंगे ना कि जब यहाँ पे आपका जो अपोजिट कोई एक कंपोनेंट मौजूद है। अगर ये कंपोनेंट मौजूद है तो दैट विल कैंसल द x एक्सिस, जो इस कंपोनेंट को कर लेगा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि x एक्सिस पे कोई कंपोनेंट कैंसिल ना हो बल्कि z एक्सिस पे कंपोनेंट कैंसिल हो जाए और वहां पे मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए, तो उसके लिए आपको नीचे कोई वेक्टर लेके आना पड़ेगा। ऐसा वेक्टर क्रिएट करें जो नीचे ऊपर वाली मैग्नेटाइजेशन इस कंपोनेंट को कैंसिल कर दे। इसको अगर कैंसिल तब भी करेगा अगर कोई वेक्टर नीचे को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, उस नेक्टर को पॉइंट करने के लिए सब आप दो चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि आपके सारे ये जो वेक्टर्स हैं जो इंडिविजुअली मुख्तलिफ जगह पे आउट ऑफ फेज मूव कर रहे थे, दे मस्ट कम इन अ फेज। इसको कहते हैं कोहेरेंस। सारे वेक्टर कोहेरेंट हो जाएंगे। उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका ये जो y इस साइड पे चूंकि कोई वेक्टर नहीं होगा, देयर इज नो वेक्टर इन दिस साइड, तो यहाँ पे जो आपका x कंपोनेंट है दैट विल नॉट एग्जिस्ट, सो दैट विल नॉट कैंसल,
दी एक्स कंपोनेंट। तो इसलिए एक्स कंपोनेंट को अगर आपने कैंसल होने से बचाना है तो आपके सारे वेक्टर दे मस्ट बी कोहेरेंट, दे मस्ट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, they must be moving with the same in phase, they should have the same phase। ओके, मैंने मुख्तलिफ तरीकों से इसको समझा दिया। दूसरा ये है कि अगर y कंपोनेंट आपने z कंपोनेंट कैंसिल करना है तो सम ऑफ वेक्टर मस्ट अब्सॉर्ब दिस सिग्नल एंड दे शुड पॉइंट डाउनवर्ड, जहां पे इसकी एक्साइटेशन हुई है। अब ये जब नीचे आए हैं तो इनके जो y कंपोनेंट हैं, z कंपोनेंट हैं, ये कोरिस्पॉन्डिंग z कंपोनेंट जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको कैंसिल कर देंगे। तो आपका एक तो ये हुआ कि आपके जो नेगेटिव x साइड पे कोई वेक्टर नहीं है, लिहाजा x कैंसिल नहीं होगा, और z एक्सिस पे हमारे पास कुछ जो न्यूक्लियाई हैं दे अंडरगो excitation, they have changed their flip, they have changed their spin, so now their negative z component will cancel the positive z component and the whole result will be the magnetization on the x axis। तो इस वजह से हमारे पास दो मैकेनिज्म यहाँ पे हुए हैं, एक तो कोहेरेंस हुई है और दूसरा ये है कि एक्साइटेशन हुई है। तो कोहेरेंस एंड एक्साइटेशन cause the overall magnetization to tilt on the x axis, और उसके बाद ये मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ये सारे वेक्टर आप मूव कर रहे हैं, ये सारे ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पे होंगे थोड़ी देर में, फिर यहाँ पे होंगे, फिर यहाँ पे होंगे, इसका मतलब ये है कि ये नेट मैग्नेटाइजेशन जो है ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है। इस मूवमेंट की वजह से, एक सेकंड मेरा जो है वो मुझे चार्ज करना है कंप्यूटर, अदरवाइज इट विल शट डाउन। ओके, सो आई एम बैक। सो हमारा जो ये कोहेरेंस और एनर्जी अब्जॉर्प्शन से नेट मैग्नेटाइजेशन एक्स वाई प्लेन में मूव करेगी। जब ये एक्स वाई प्लेन में मूव करेगी तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो आपका जो नेट सिग्नल है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ये सॉरी, ये दीज टू एरो शुड बी रेड, क्योंकि ये हाई एनर्जी स्पिन स्टेट पे हैं। अब आपकी मैग्नेटाइजेशन एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रही है एंड यू हैव एक्चुअली कट डाउन द अप्लाइड पल्स। पल्स अब आपका ख़त्म हो गया है, तो अब मैग्नेटाइजेशन जो है वो इसके अंदर मूव कर रही है। तो आप याद रखें, जब ये एक्स एक्सिस से अवे जाएगी तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का कंपोनेंट रिड्यूस होगा। ओके, क्योंकि आप जब ये दूसरी तरफ मूव करेगी नेट मैग्नेटाइजेशन, बट इट विल स्टे इन द एक्स वाई प्लेन, बट इट इज मूविंग इन ए सर्कल। तो आप जैसे ये पीछे की साइड पे जाएगी तो यहाँ पे सिग्नल कम होता जाएगा, फिर इसके बाद ये सिग्नल बढ़ेगा, फिर कम होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से एक वेव टाइप प्रॉपर्टी इसके अंदर पैदा होती है, जिसको हम फ्री इंडक्शन डिके कहते हैं। ओके, तो आपका ये जो नेट मैग्नेटाइजेशन है ये फिर इसके बाद इसकी अमाउंट कम होती जाएगी। अमाउंट कम कैसे होगी कि as soon as you remove the pulse, then all coherent vector they will dephase, ये phasing out होना शुरू हो जाएंगे because of different alarmer frequency, क्योंकि हर जो आपका यहाँ पे जो एरो आपको नजर आ रहा है, दैट एरो कम फ्रॉम ए डिफरेंट लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो जब आपका मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो गई, सॉरी आपकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी कट डाउन की है आपने, ख़त्म कर दी है, तो उसके बाद कोहेरेंस ख़त्म हो जाएगी, और कोहेरेंस ख़त्म होने के बाद हर लार्मर फ्रीक्वेंसी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे मूव करेगी। तो जो फास्टर मूविंग है वेक्टर दैट विल बी लीडिंग, एंड जो स्लोअर मूविंग वेक्टर है वो पीछे रह जाएगा। तो उसके बाद ये फेज आउट हो जाएंगे। तो जिस तरीके से अम्ब्रेला जो है ना वो फेज आउट होता है, तो ये फिर नेट मैग्नेटाइजेशन, उसमें फिर आप
कुछ वेक्टर जो है वो नेगेटिव एक्स साइड पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव एक्स वाला जो नेट मैग्नेटाइजेशन है इसको ख़त्म करना शुरू कर देंगे। रिजल्ट क्या होगा? वी विल सी ए प्री इंडक्शन डिके। अब ये देखें, ये अप डाउन ये जो यहाँ पे हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द मूविंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और उसके बाद इसमें एक ट्रेंड है कि आपकी जो पीक है, जो यहाँ पे सिग्नल है दैट इज डिकेइंग। और डिके इस वजह से हो रहा है कि द सिग्नल द वेक्टर्स आर फेजिंग आउट। ओके, अब दो चीजें यहाँ पे आपने देखा हो रही है, यहाँ से ही रिलैक्सेशन के दो मैकेनिज्म निकलने वाले हैं। पहला मैकेनिज्म ये है जो फेजिंग आउट है कि आपके जो सिग्नल जो कोहेरेंट थे दे हैव गॉन जो डीफेजिंग, और उसके बाद सिग्नल जो है वो स्प्रेड हो जाता है, और मैग्नेटाइजेशन जो है इस साइड पे जीरो हो जाती है यहाँ पे जाकर। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? इस फेजिंग आउट के दरमियान जो हाई एनर्जी वेक्टर हैं दे रिमेन इन द हायर स्पिन स्टेट। ओके, वो स्पिन स्टेट रिलैक्स नहीं करते, अभी अभी रिलैक्सेशन सिर्फ फेजिंग आउट है। कोहेरेंस जो सिग्नल है दे अंडरगो डी कोहेरेंस, और उसके बाद फिर जो हाई एनर्जी स्पिन स्टेट हैं वो वापस अपने लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट पे जाते हैं, और उससे आपकी जो बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन है वो रिस्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि दो मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म इज द स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, जिसको हम T2 से इंडिकेट करते हैं। याद रखिएगा, स्पिन स्पिन, इसमें दो दफा स्पिन आता है तो आपने यहाँ T2 कर दिया इसको। इस स्पिन में हमारा हमारा जो जो सिग्नल हैं दे आर चेंजिंग फ्रॉम कोहेरेंस टू नॉन कोहेरेंट स्टेट, एंड नो पॉपुलेशन इज रिस्टोर्ड। जो हाई एनर्जी स्पिन जो वेक्टर है दैट रिमेन इन हाई एनर्जी, जो लोअर एनर्जी वाला है वो लोअर एनर्जी में होता है। और इसमें ये जो स्पिन स्पिन का मतलब ये है कि जो सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो हाई एनर्जी वाला जो न्यूक्लियस है वो लो एनर्जी वाले न्यूक्लियस के साथ अपना स्पिन एक्सचेंज कर लेता है। यानी एक अगर हाई एनर्जी वाला न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करता है तो उसी तरह का उसका जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है जो लो एनर्जी पे है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि वो डी फेज तो हो जाते हैं but they do not change their population, they remain in the same way। तो ये T2 टाइम कहलाता है। फिर ये होता है स्पिन लैटेक्स रिलैक्सेशन। अब आपका जो सैंपल है, आपका मॉलिक्यूल है, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करता है। तो उस एनर्जी एक्सचेंज से सॉल्वेंट का टेम्परेचर भी राइज होता है क्योंकि वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो एनीवे जब आपके ये जो हाई एनर्जी जो न्यूक्लियाई हैं दे रिलीज देयर एनर्जी टू द सॉल्वेंट and they go back to the lower energy spin state and restore the population excess, then we call it T1 time, spin lattice relaxation time। ओके, तो ये रिलैक्सेशन प्रोसेसेस दो तरह के हैं। एक में कोहेरेंस से नॉन कोहेरेंस आप स्टेज पे जाते हैं और इसमें पॉपुलेशन रिस्टोर नहीं होती, और दूसरे में आपके जो हाई एनर्जी स्पिन न्यूक्लियाई हैं दे exchange their energy with the solvent and then go to the lower energy spin state। इसमें कोई क्वेश्चन? Alright, no question, we move on। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, दिस इज ऑल इन रिटन फॉर्म, जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स एंड जो मैंने प्रीवियस मॉडल से आपको समझाया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई हैं। ओके, अब ये जो स्पिन, इनको थोड़ा सा एलेबोरेट फॉर्म में हम कहते हैं कि जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन है जिसको T2 से हम इंडिकेट करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। इट इज द टाइम इन विच योर सिग्नल जो फेज कोहेरेंट वेक्टर्स हैं दे अंडरगो डीफेजिंग, और न्यूक्लियाई जो एक्साइटेड स्टेट पे हैं दे रिमेन एट द एक्साइटेड स्टेट।
Excited nuclei lose the phase coherence by exchanging spin. जो सेम एनर्जी, जो सेम केमिकली इक्विवेलेंट जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में अपने स्पिन एक्सचेंज करते हैं. सो देयर इज नो नेट चेंज इन द पॉपुलेशन. सो इस प्रोसेस में इंट्रोपी इंक्रीज होती है क्योंकि आपके स्पिन जो है वो रैंडमाइज होते हैं. दिस प्रोसेस अक्कर ओनली बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ सेम टाइप, ये मैंने आपको बता दिया है. इसमें बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन रिस्टोर नहीं होती. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने याद रखना है. और ये टाइम जो होता है स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन का, दैट इज ऑलवेज शॉर्टर. इट विल बी फास्टर मैकेनिज्म देन द T1 जो जिसमें पॉपुलेशन रिस्टोर होती है. तो आपका जो डीफेजिंग जो टाइम है दैट इज शॉर्टर, एंड जिसमें पॉपुलेशन रिस्टोरिंग टाइम T1 है दैट इज बिगर in magnitude. Okay, for structural information, T2 is less informative than the T1. T1 में हमें ये होता है कि चूँकि पॉपुलेशन रिस्टोर होती है और आपका जो सैंपल है दैट बिकम रेडी टू अब्जॉर्ब द नेक्स्ट पल्स, तो इसलिए आपको T1 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आपने कंट्रोल करना होता है. ऑलराइट, जो स्पिन लैटेक्स रिलैक्सेशन है, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन. इट इज रिप्रेजेंटेड विद T1 एंड पॉपुलेशन इज रिस्टोर्ड आफ्टर T1. बोथ इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड T1 रिलैक्सेशन. इसका मतलब ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल एक्साइटेड स्टेट पे है, it can exchange its energy with a chemically non-equivalent न्यूक्लियस जो कि लोअर एनर्जी स्टेट पे. सपोज करें कि ये आपकी डायरेक्शन है B0 की, तो ये हाइड्रोजन लो एनर्जी स्पिन स्टेट पे है, ये एक्साइटेड स्टेट पे है, तो ये अपना जो स्पिन है, जो अपनी एनर्जी है, वो इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर सकता है. दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पिन लैटेक्स रिलैक्सेशन. तो इसमें रिजल्ट क्या होगा कि ये लो एनर्जी पे चला जाएगा और ये फिर हाई एनर्जी पे मूव कर जाएगा. तो इसी तरीके से ये जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, सॉल्वेंट के जो न्यूक्लियस हैं, उनके दरमियान भी ये स्पिन एक्सचेंज हो सकता है. ऑलराइट, excited nuclei lose their energy mostly to the surrounding molecule जो solvent के हो सकते हैं, and they excite them to the to the higher kinetic energy. जो भी solvent molecule इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उसकी टम्बलिंग मूवमेंट जो जिसको हम रोटेशनल कहते हैं, क्योंकि रोटेशनल एनर्जीज आर इन दिस रीजन रेडियो फ्रीक्वेंसी. तो आपके मॉलिक्यूल जो टम्बल ज़्यादा करते हैं और उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, रिजल्ट क्या होता है कि सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है विद द NMR सिग्नल. दिस मैकेनिज्म इज especially effective if hydrogen atoms are nearby. That is why जो CH3 है that relax faster than the CH2, and quaternary carbon that relax longer. इसको longer time चाहिए to come from to restore the बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन. तो इसका T1 जो है इसका लॉन्गर होता है. तो अब अगर आप यूँ एज्यूम करें कि आपके जो सारे सैंपल के जो क्वाटरनरी कार्बन हैं वो अगर कंप्लीटली रिलैक्स नहीं हुए, लेट्स से कि सिर्फ 90% रिलैक्स हुए हैं और बाकी 10% जो क्वाटरनरी कार्बन है दे आर स्टिल इन एक्साइटेड स्टेट, और आपने नेक्स्ट पल्स दे दिया है, तो नेक्स्ट पल्स जो है वो 90% जो सैंपल है वो ऑब्जॉर्व करेगा, 10% सैंपल आपका ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट पे है, तो इसलिए वो इस सिग्नल को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा. तो रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो क्वाटरनरी का सिग्नल है ये अगर T1 शॉर्टर है
T1 अगर रिलैक्सेशन टाइम आपने जो पल्स और पल्स के दरमियान जो टाइम है फ्रॉम वन पल्स टू द अदर पल्स अगर टाइम शॉर्टर है शॉर्टर देन T1 ऑफ क्वाटरनरी कार्बन, तो रिजल्ट क्या होगा कि आपके जो क्वाटरनरी है दे लेस एंड लेस विल बी अवेलेबल टू अब्सॉर्ब द नेक्स्ट सिग्नल नेक्स्ट पल्स। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो जो C13 की पीक आएगी दैट विल बी शॉर्टर देन द पीक ऑफ CH। और ये आपने C13 स्पेक्ट्रम में देखा हो कि वाई क्वाटरनरी कार्बन इज शॉर्टर, क्योंकि उसमें अगर आप जो इंस्ट्रूमेंट जो रन कर रहा है अगर आप उसको कहें कि जो पल्स टू पल्स आपने टाइम सेट किया हुआ है, अगर सपोज करें वो 2 सेकंड का है और आप कहते हैं कि इसको इंक्रीज कर दें 5 सेकंड का, तो फिर क्या होगा कि ये सम ऑफ क्वाटरनरी कार्बन विल रिलैक्स टू एंड दे विल रिस्टोर देयर पॉपुलेशन एंड दे विल अब्सॉर्ब नेक्स्ट पल्स और उससे आपका सिग्नल बेटर हो जाता है। ऑलराइट, solvent molecule in turn increase their energy in the form of kinetic energy and they increase the temperature। अच्छा, जो इनवर्स होता है स्पिन लैटिक्स टाइम का जो 1/T है दैट इज द डिके कांस्टेंट ऑफ फ्री इंडक्शन डिके। अगर आपने FID की अगर शेप देखें तो इस तरीके से ये जो रिड्यूस होता है, तो इसका जो अपना हाफ लाइफ है दैट दैट डिके प्रोसेस है, इसका जो रेट कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 1/T1। ओके, चलें अब मेरे ख्याल के हम स्टार्ट करते हैं क्विज 7। इसके साथ अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, बाकी आपसे एक जो बात छोटी कहनी छोटी थी सर। स्लाइडें हैं उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि जो दूसरे न्यूक्लियाई हैं, लेट्स से कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन आल्सो अब्सॉर्ब NMR सिग्नल, इट हैज I इक्वल टू 1/2, सो इस वजह से इसके दरमियान भी C13 और फ्लोरीन की स्प्लिटिंग जो है वो ऑब्जर्व होती है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम इस कोर्स में पढ़ चुके हैं पहले ही, कि अगर आपके जो नेबरिंग एटम हैं इफ दे आर मैग्नेटिकली एक्टिव देन दे विल स्प्लिट द सिग्नल ऑफ C13। तो इसमें जो इनके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसमें अगर आप गो थ्रू हो, इसी तरीके से फास्फोरस है, फास्फोरस इज NMR एक्टिव एंड इट कैन स्प्लिट द सिग्नल, और इनके जो कपलिंग कांस्टेंट है वो यहाँ पे बताए हुए हैं। तो ये इसके साथ ही हमारा जो है वो ये कोर्स ख़त्म होता है। NOE के लिए हमारे पास जो है ना वो टाइम नहीं बचा, तो मैं इसकी जो वीडियो है वो शेयर कर दूंगा इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड टू गो ओवर द NOE मैकेनिज्म, तो वो उस लेक्चर को सुन सकता है, बट दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ आवर फाइनल एग्जाम। ओके, क्वेश्चन? जी सर, आपसे एक बात कहनी थी। नो क्वेश्चन? सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सो हम लेक्चर ख़त्म करके तो आप क्विज स्टार्ट करते हैं। सर आई थिंक आप